Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. खुदा पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ। और तेरी उपस्थिति ने मेरे प्यारे पिता इस जगह ते मंग लेने मेरे प्यारे पिता खुदा मन खुदा। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ओके बाबा इस नाम से आमीन। तो आपको शुक्र है आपने हमें वक्त अता किया है कि आपकी हज़ूरी में आ सके, इस प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन कर सके, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। इस प्रेयर मीटिंग का हॉर्न में आपको जो है तो साथों में देते हैं बाप, हम सबके साथ साथ होएगा। इस प्रेयर मीटिंग का जो तरीका है वो आपको पसंद आया है बाप, जितनी हम प्रशिश करते हैं आपको जो कबूल, हमारा प्रशिश आपको जो बखूर की मानी पहुंचे हैं, प्रशिश का जो तरीका है वो आपको पसंद आया है बाप। हम प्रशिश से आपको तक लगे हैं बाप, की आंखें लगे हैं बाप। और बाप जो हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, जो पाक कलाम सुनते हैं, अब हमारे लिए बात से बरकत हो, हम पाक कलाम का समझ के सुन सके हैं बाप। हम सबके साथ साथ होएगा बाप, और जितनी हम दुआएं करते हैं हम उससे आपको जो बखूर की वाणी पहुंचे बाप। हमारे एक एक दुआ आपके हुजूर पहुंचे बाप, में जो कोई भी रुकावट ना आए, हमारे सारी दुआ आपको जरूर पहुंचे, हमारे एक भी दुआ का लफ्ज आगे ना जाए, हमारे सारी दुआ आपको जरूर पहुंचे बाप। सभी कुछ मांग लेते हैं आपका बड़े मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू समर। ਜ਼ਬੂਰ 89 ਦੀ ਫਸਟ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੌਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੀ ਚੜਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਬਸਮ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. रब माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वधा के तू पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। रब्बा तेनू मनावा होया मेरे को हथावा, रब्बा तेनू मनावा होया मेरे को हथावा, मैं तो दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा, मैं तो दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा, तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे,
तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, हाथ अपना वधा के तू पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, कर दूर सजावां कोल अपनियां बावां, कर दूर सजावां कोल अपनियां बावां, हैरे करम दी पा दे एहो कहंदियां ने सावां, हैरे करम दी पा दे एहो कहंदियां ने सावां, झोली मेरी भर दे कम सारे सर दे, झोली मेरी भर दे कम सारे सर दे, हाथ अपना वधा के तू पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वधा के तू पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, sister ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਮਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਮਸੀਓ ਵੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਵੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਮਸੀਓ ਵੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਵੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਂਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਂਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਵੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਮਸੀਓ ਵੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਂਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ,
जत वहिंदी सिमरन ते मेरा कौंत बोलियां मारे। सतसंगियो वीरो वे मेरा लै स्नेहा जायो। सतसंगियो वीरो वे मेरा लै स्नेहा जायो। कह दियो मेरे जशु नू रोंदी ती शहनशाह तेरी। कह दियो मेरे प्रभु नू रोंदी ती शहनशाह तेरी। ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗॉड ब्लेस यू। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ। ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। Praise the Lord. Praise. मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हुआ करूँ कि अमान में। मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ,
ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਬਲੀਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ। ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਬਲੀਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ। ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਿਰੌਨ ਦੀ, ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਿਰੌਨ ਦੀ, ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Praise the Lord. God bless you. God bless you. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੰਗ Yes, Lord Jesus. Hallelujah.
चाल कामयाब ना होवे मेरे प्यारे खुदावन खुदा। खुदावन खुदा तेरे फरिश्ते खुदावन खुदा इस जगह ते मौजूद होण खुदावन खुदा, और जो भी कलाम खुदावन खुदा जो बीज बोझा जावे साडियां जिंदगियां दे विच मेरे प्यारे पिता, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ खुदावन खुदा ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ प्यारे आमीन। पिता। यस खुदावन तेरा ही शुक्र, तेरी ही तारीफ कर दे मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे पिता। खुदावन तू आजाद कर, तू सारा बहाल कर अपने अज जो भी खुदावन खुदा तेरी दास जो भी अज कलाम पेश कर मेरे प्यारे पिता, उस वसीले ना साड़ी सारे ने जिंदगी तब्दील हो जान मेरे प्यारे पिता, और तेरे पाक पवित्र नाम दे विच मेरे प्यारे पिता सी मांग लैंदे हां खुदावन खुदा, तेरा शुक्र दी तारीफ करदे हां। आमीन। हुण असीं सिस्टर शीहिंग रोज उन्हां दा वेलकम करदे हां। हाँ जी, Praise God. सिस्टर्स ਨੂੰ लीड करेंगे जी। Praise the Lord. God bless you अंजना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और आपकी दिल की मुरादों को खुदावंद पूरा करे। खुदावंद का हाथ आपके ऊपर हमेशा बड़ा रहे और खुदावंद का जो पैर है आपके चुगिर्द लगा रहे और खुदावंद हमेशा आपको संभाल के रखे, आपकी फैमिली को, और खुदावंद अपने गहरे नकाशबात खोले, गहरे भेद अपने आपके ऊपर खोले। गॉड ब्लेस यू। और खुदा उनकी प्रस्तिश के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया जीसस। जी, आज हम किसी को याद है कितने हो गए हमारे जो साथ हमने हाँ जी, 4 हो गए बाजी। ओके प्रेज गॉड। तो हम सीख रहे हैं ना कि किस किस जगह पे खुदा यीशु मसीह का खून बहा, बदन के किस हिस्से से खुदा यीशु मसीह का खून बहा, है ना। तो जैसे जैसे खुदावंद हम कह सकते हैं कि गतसमनी का जो सफर था खुदावंद का शुरू हुआ, तो उसी तरह हम भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा जैसे कह लें मेरा तरीका फर्क है कि हम ये भी सीख रहे हैं कि खुदावंद ने क्या क्या हमारी लानतें जो थी वो ख़त्म की, और किस तरह से खुदावंद ने हमें आज़ाद किया, और खुदावंद यीशु मसीह का ये खून जो था किस लिए बहा था, है ना। वैसे तो पूरे जिस्म से ही बहा था, लेकिन मुंह के ऊपर से बहा उसका क्या मतलब था, हाथों से, पाँवों से। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस तरह हम सीखें, ताकि वो खून जो है उसी तरह हम लगाएं। और ये मैं शायद एक दिन पहले भी कह रही थी, लेकिन फिर से चले कि जो लोग जैसे कह लें कि जिनको जंग करना नहीं आती, हम सभी जंगजू हैं, सिपाही हैं खुदा उनके यीशु मसीह के, लेकिन उसके बावजूद हमें कई दफ़ा वो लफ्ज़ या उस तरह बोलना नहीं आता। हम सोचते हैं कि शायद हम जिस तरह कह लें कि जंगजू जो हैं हम लोग दुआ कर रहे हैं, उस तरह उनको दुआ करनी नहीं आती। तो मैं कहूँगी कि उनके लिए ये बड़ा ही आसान खुदावंद ने हल निकाला है, या उसने उस मुश्किल का दूर करने के लिए एक आसान सा तरीका बताया कि उस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह का ये वाला खून लगाएं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हम सीख रहे हैं कि अगर किसी को कोई ज़हनी परेशानी में से गुजर रहा है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह का जो सर से खून बहा था वो लगाएं, है ना। तो ये वही काम करेगा जो हम जंग में अल्फाज बोलते हैं, यानी इब्लीस को कह लें कि हम डांटते हैं, निकालते हैं, उसके लिंक को ब्रेक करते हैं, है ना। तो जिनको ये नहीं आता, जो अभी कह लें कि ऐसा नहीं सीखा या उनका बोझ ऐसा नहीं है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह का ये वाला खून लगाएं, ठीक है। जो भी जैसे जैसे हम सीख रहे हैं कि जो गतसमनी के बाग में खून बहाया था, है ना, कहीं हमारे पैसे में प्रॉब्लम है, कहीं हम उसमें से गुजर रहे हैं जो अंदरूनी एक बीमारियां हैं, है ना, तो खुदावंद यीशु मसीह का वो वाला खून आप लगाएं, ठीक है। तो इसलिए ये देखें कितना खुदावंद ने हमारे लिए आसान कर दिया है कि हर कोई जो फायदा है या जो
खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए आसानी जो है वो पैदा कर दी है ना, क्योंकि सब किसी को जंग करना नहीं आता। तो ये जंग का ही कह लें कि एक तरीका है जब खुदावंद यीशु मसीह का आप खून उस जगह पे लगाएंगे, है ना। तो जो भी जिनको अभी थोड़ा नहीं समझ जंग की, तो वो इस तरह अपने जो मसाइल हैं, अपने जो परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां, उनके ऊपर ये वाला खुदावंद यीशु मसीह का खून लगाएं, तो वो वही काम करेगा, है ना। वो इब्लीस को जो हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है ना, तो उसको अ, हराने के लिए उसको हमारे बदन में से निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का ये वाला खून जो है, वो उसी तरह की कह लें कुदरत रखता है, ताकत रखता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हम कई दफा लफ्ज गलत बोल देते हैं जब हम जंग कर रहे होते हैं। वैसे तो नहीं होता, लेकिन कई दफा हो भी सकता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ बोल दें, लेकिन खून जहाँ पे लगाएंगे वहां पे कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो वो हमारा खुदा यीशु मसीह का खून कुदरत वाला खून है, ताकत वाला खून है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बस अगर थोड़ा थोड़ा इस तरह सीख रहे हैं, जिस तरह इस तरह अगर आप करें, तो आपको रिजल्ट जो है ज्यादा जल्दी मिलेंगे। तो आज का हम जो कह लें पॉइंट है हमारा, खुदावंद यीशु मसीह के जो हाथों से खून बहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हाथों पे कील ठकवाए थे, उसका क्या मतलब था, या उसके पीछे वजह क्या थी, और अब हम किस तरह आजाद हो गए, है ना। तो आज हम थोड़ा सा ये सीखते हैं कि हाथों पे जो खुदावंद यीशु मसीह के कील लगे थे, वो हमें किन किन चीजों से या किन किन जो हमारे पीछे लानते हैं उनसे आजाद करने के लिए उस खून को हम इस्तेमाल करेंगे। अब किस किस तरह हम आजाद होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ रीडिंग में अंजना है और तबस्सुम है ना जी। हालेलुया। शिक्रिया कत्रिया रे सियारा बशिक्रे ओरे सियारा शिक्रिया कत्रिया रे बे सीरिया शीरिया किरिया कत्रिया कत्रिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा हम कह रहे हैं मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ आपके दरमियान, ताकि कहीं पे भी आपके खिलाफ जो कुछ बोला गया है, लिखा गया है, उसको कैंसिल करने के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जी, तो अब जरूर मैं ये आगे चल के बात करने वाली थी, लेकिन खुदावंद ने अभी जैसे कह ले कि बोझ दिया कि जो कहते हैं कि हमारे पर किसी ने कुछ कर दिया हुआ है, कोई तवीज कुछ लिख दिया हमारे खिलाफ, को फाल को कुछ, तो खुदावंद कह रहा है कि उन सब से जो हमारे खिलाफ लिखा हुआ है, उसको आजाद करने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये खून जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों से बहाया, उसके लिए इस्तेमाल करे। मैं आगे चल के इसको थोड़ा सा और खोलूंगी जिस तरह खुदावंद पाक को गाइड करेगा, लेकिन खुदावंद ने पहले ही उस चीज को रिवील कर दिया आपके ऊपर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी, हम हवाला पढ़ते हैं कुलसियों की किताब, कुलसियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 13-14 आयत। 14 आयत हम पहले पढ़ते हैं। जी, तो बस अब जी सिस्टर पहले किसी और को बोल दे, मेरे जरा ग्लासेस में। ओके जी, अंजना आप पढ़ना कुलसियों का खत, उसका 2 बाब, ये फिलिपियों के बाद है। हाँ हाँ जी, 2 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं। 2 बाप ਦੀ 14 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। अगर इसके जो 13 आयत है वो भी पढ़ें तो उससे हमें पता चलता है कि जो यानी हमारे
कसूर थे या हमारी जो उसमें मुर्दा थे नामख्तूनी में, और जो हमारे खिलाफ दस्तावेज लिखी हुई थी, खुदावन ने जो ये हाथों पे कील ठकवाए थे वो उस लिए लिखवाए थे कि जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया था, खुदावन ने उसको मिटाने के लिए ये जो कील थे सलीब के ऊपर वो ठकवाए थे, है ना। ये आज से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो कुछ भी हमारे खिलाफ लिखा हुआ था, और हाँ जी बच्ची 13 वर्ष पढ़ा। हाँ जी पढ़ो, 13 भी 14 भी और 15 भी हम पढ़ेंगे। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ तमाशा बढ़ाया। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किया? बरमला तमाशा बनाया, जो हमारे खिलाफ लिखा गया था खुदावंद ने वो मिटा दिया, जो हुकूमत और इख्तियार वालों ने हमारे खिलाफ लिखा था। ये हम पीछे अभी देखते हैं वर्सेस से आपको और ज्यादा वाज़ा पता चलेगा। तो पहले तो खुदावंद ने यही कह ले मेरे पर, यानी जे अभी जो खुदावंद हमारे से बोला कि हम जो कहते हैं कि जो हमारे ऊपर आपको पता है ना, तवीज के ऊपर भी लिखा होता है कुछ उस बंदे के खिलाफ, जिसको वो पता नहीं घोल के पिला देते हैं या उसके बांध देते हैं या कुछ, है ना, जो किसी के खिलाफ करते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कुछ ना कुछ उसके खिलाफ। तो इसलिए खुदावंद ने वो मिटा दिया है। किसी ने भी आपके खिलाफ कुछ किया है, बोला है, लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कीलों से क्या कर दिया, उस सलीब के ऊपर जड़ दिया है। उसको उखेड़ नहीं सकता कोई, वो जैसे कहते हैं ना जोड़ गया है, वो हटा नहीं सकता उसको, कोई उसमें से निकाल नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, कीलों से उसको जड़ दिया है। अब आपके खिलाफ जो भी कुछ अब्लीस करता है, जो कोई लोग कहते हैं जी इसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कुछ पढ़ दिया है ना, तो वो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वो सब कुछ जड़ दिया है सलीब के ऊपर। इसलिए हमें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उसका बरमला तमाशा बना दिया, जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया है ना। तो इसलिए कीलों की जो थी, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कील टिकवाए, उसके पीछे ये वजह थी। हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए, वैसे तो अब आपको सारी समझ लग गई होगी, लेकिन हम फिर भी हवाले के साथ थोड़ा सीखते हैं। आप निकालें गिनती की किताब 5 बाब उसकी 23 आयत। 23 वर्ष। हाँ जी 23 वर्ष। हाँ जी। ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ उस तीमी दे अंदर जाके कौड़ा हो जाएगा। हाँ जी, क्या है कि उसके खिलाफ जो लिखा हुआ था वो उस औरत को पिलाया गया, यानी उसके खिलाफ जो लिखा गया था। तो इसलिए अगर इस तरह आप देखते हैं कि जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा है वो मिट जाता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून से मिट गया। एक और हवाला इसी का गिनती का हम पढ़ते हैं 16 बाब और उसकी 22 आयत। 16 बाब, हाँ जी 16 बाब उसकी 22 आयत। गिनती 16 बाब उसकी 22 आयत। तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, ऐ खुदा सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर
सारी जमायत पर होगा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमात से कह कि तुम कोरे और दातन और अब्राहिम के हेमों के आसपास से दूर हट जाओ। और हाँ जी, मूसा थैंक यू। हाँ जी, बस जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हम एक और हवाला पढ़ते हैं, वाइस की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत। वाइस की किताब, हम पहले सारे हवाले पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। अजी केड़ा बोला तुसी? वाइस किदे बाद है, कहोतां दे बाद है मेरा हल, इंसाल के बाद है। ठीक है बस। उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत। हाँ, 12 बाप उसदी वर्स बाजी। 7 ਅਤੇ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਰਲੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। हाँ जी, एक और हवाला पढ़ते हैं हम, दानियल की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 7 और 8 आयत। दानियल की किताब, 5 बाब, पांच बाब कौन सी वर्ष? 7 और 8। 7 और 8। बादशाह ने चलाकर कहा कि नजूमियों और कसीदियों और फालगिरों को हाजिर करे। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे, अर्गवानी किल्लत पाएगा और उसकी गर्दन में जरीन तोप पहनाया जाएगा और वो मलकमत में तीसरे दर्जे का हाकम होगा। हाँ जी, तब बस बादशाह के तमाम जी बस ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इसमें ये हम देख रहे हैं कि इसमें भी नविश्ता लिखा गया। आप सबको ही है स्टोरी का पता होगा कि जो दीवार पे लिखा गया था उसके खिलाफ, है ना, बादशाह के कि, कि वो तोला गया और उसमें कम निकला, है ना, तो ये उसके खिलाफ लिखा गया था नविश्ता। ठीक है, तो एक और हवाला हम पढ़ते हैं, आस्तर की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 12 आयत। आस्तर की किताब, बाजी केड़ा तुसी बोले? नेट चला गया ਸੀ। आस्तर नहमिया दे बाद अंजना, नहमिया की किताब चढ़ी है। अस्तर ही है पंजाबी ਚ ਵੀ। अच्छा, आस्तर, ठीक। आस्तर, उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत। आस्तर की किताब, हाँ जी। बसंत सिस्टर जी मिल गया तो पढ़ दो जल्दी जल्दी। बाजी कितना चैप्टर ਸੀ? 3 3 चैप्टर वर्स 12। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਮਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਬ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਵਰੋਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਠਾਪ ਦਿੱਤੀ। आमीन।
आमीन। हाँ, इसी का अस्तर का अंजना निकालना 8 बाब और ਹਾਂਜੀ उसकी 8 आयत अस्तर की। ਤੁਸੀਂ हाँ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अभी हमने हवाले पढ़े, कुछ की शायद आप थोड़ी समझ लगी, कुछ की नहीं लगी। लेकिन इसमें ये लिखा कि जो यहूदियों के खिलाफ या किसी भी उसके खिलाफ, जैसे जो दानियल में हमने पढ़ा कि वो उस बादशाह के खिलाफ लिखा था खुदावंद ने, है ना, जो नविश्ता लिखा था कि वो क्या होगा, कि वो तोला गया और उसमें कम निकला। तो ये जो अभी अस्तर की किताब में हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या हुआ था कि ये जो हमान था, अगर आप इसकी स्टोरी को पढ़ें तो शायद आपको सारी समझ लगी हो कि इसने क्या किया था यहूदियों के खिलाफ, कि पूरी दुनिया से यानी यहूदियों को ख़त्म करने के लिए ये जो उसने चिट्ठियाँ थी, ये ख़त जो थे लिखे थे और मोहर जो थी बादशाह की लगाई थी। तो ये क्या था, उनके खिलाफ लिखा गया था। जो यहूदी कौम है, इस्राएली कौम जो थी, उनके खिलाफ लिखा गया था कि उनको क्या करना है, उसने मरवा देना था। जो क्या कहते हैं, हुक्म जो था वो जारी हो गया था, जो नविश्ता था उनके खिलाफ, यहूदी कौम के खिलाफ लिखा गया था कि पूरी दुनिया से उनको खत्म कर देना, है ना। तो इसी तरह हमने जो महकिन्ती की उसमें पढ़ा, उसमें भी पूरी कौम के लिए ही खुदावंद ने क्या किया था, उससे कहा था कि मैं इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, इसको मिटा दूंगा, इस्राएली कौम को भस्म कर दूंगा, है ना। तो और इसमें हमने पढ़ा दानियल की किताब में एक बादशाह के लिए ये जैसे कह लें मारने का जो हुक्म था या वो नविश्ता जो था वो लिखा गया था। और कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं कि पूरी पूरी कौम के यानी के लिए ये नविश्ता या ये जो खत थे वो लिखे गए थे। एक और जगह मुझे हवाला याद नहीं आ रहा, जिसमें था एजबल की स्टोरी, शायद आपको एलिया की और उसकी अगर किसी को याद है तो वो बता सकता है कि जब वो जो जज़बल थी उसने उसके खिलाफ चिट्ठियां लिखी थी, अ, जिसका खेत था और वो उसके ऊपर बादशाह कब्जा करना चाहता था। तो उसके भी क्या किया था, उसको संसार कर दिया गया था, उसको झूठी उसके खिलाफ चिट्ठियां लिख दी गई थी, है ना। तो उसको मार दिया गया था, संसार कर दिया गया था। तो इसी तरह ये अ, हामून जो था, इसने भी क्या किया था, पूरी यहूदी कौम को ख़त्म करने के लिए जो चिट्ठियाँ थी, जो ख़त थे, वो लिख दिए थे। नविश्ता जो था वो जारी हो गया था, जिस तरह शायद आप देख रहे हैं। इस तरह पहले कह लें ज़माने में होता था उस दौर में कि चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और वो कोई चौराहा होता था, कोई जगह ख़ास उनकी बनी होती थी, जहाँ पे वो इस तरह टंगा दिया करते थे, कील से जड़ दिया करते थे कि सारे लोग आते-जाते पढ़ें। एक तो वो सिपाही जैसे कह लें आके ऐलान किया करता था उस जैसे कोई चौराहा होता था या कुछ भी जगह ख़ास बनी होती थी, है ना? और बाकी क्या था, वो लिख के इस तरह टंगा दिया करता था, दीवार के ऊपर या लकड़ी के ऊपर किसी तरह वो उस पे दिया जाता था। जो नविश्ता जो था या खत जो चिट्ठी जो थी, लिखी होती थी किसी के भी खिलाफ या किसी के भी, तो वो लोग आते-जाते उसको पढ़ा करते थे, है ना? तो इसी तरह यहूदी कौम के खिलाफ ये हामून ने क्या किया था कि इसको ख़त्म करने के लिए चिट्ठियाँ बनाई और उसको इस तरह पूरे सब शहरों में भेज दिया गया था। और आगे शायद आपको स्टोरी याद हो। बहरहाल उस पर क्या हुआ था कि जो मर्दकी था, जो आस्तर मलका थी, उसके चचा ने यानी आस्तर मलका से ये उसको सारा किस्सा बताया, है ना? और पूरी कौम ने क्या किया था, फिर रोज़ा रखा था और जो आस्तर मलका थी वो बादशाह के सामने गई थी
اور اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کو یاد ہوگا، ہے نا، کہ استر ملکہ بادشاہ کے حضوری میں گئی تھی، اور اس نے حالانکہ جو ملکہ ہوتی تھی یا کوئی بھی بادشاہ کی اجازت کے بغیر بادشاہ کے حضور آ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اپنی جان کو جیسے کہہ لیں داؤ پہ لگا کے تو وہ بادشاہ کی حضوری میں گئی تھی، اور خداوند نے کیا، بادشاہ نے سوری یعنی اس پہ رحم کیا تھا، یعنی وہ اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ چٹھیاں جو تھی ہمارے خلاف کہہ لیں، یعنی اسرائیلی قوم کے خلاف، کیونکہ اب ہم بھی کیا ہیں، روحانی طور پر اسرائیلی قوم ہے، تو جو کچھ اسرائیلی قوم کے خلاف لکھا ہوا تھا، وہ چاہے خداوند نے بولا تھا اسرائیلی قوم کے خلاف، ہے نا، یا لکھا تھا یا کسی یہ حکومت والوں نے، جیسے کہ یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ دانیل کی کتاب میں بھی ہم نے ابھی جو حوالہ پڑھا اس میں بھی کیا تھا، بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ مہر جو تھی وہ لگائی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی چٹھیاں، اور اس کے بادشاہ کی جو انگوٹھی ہوتی تھی اس کے پر سٹیمپ، یعنی وہ مہر جو تھی وہ لگی ہوتی تھی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا، ہے نا۔ تو ہامون نے بھی اسی طرح کیا، بادشاہ کی مہر کو استعمال کیا، اور پوری یہودی قوم کے خلاف کہ ان کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اور دانیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دانیل کے خلاف جیسے کہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے جو مشیر تھے بادشاہ کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دعا نہ کی جائے، ہے نا، وہ دانیل آپ کو شاید یاد ہی ہوگا، پھر اس کو شیروں کے اس میں ماند میں ڈال دیا گیا تھا، ہے نا۔ تو یعنی ایک قسم کا کہہ لیں کہ اس کے خلاف یہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا، لکھا گیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے، ہم نے ابھی جو کلسیوں کی کتاب میں وہ ورس پڑھی جس میں لکھا ہے کہ کیا کیا، جو کچھ بھی ہمارے خلاف لکھا ہوا تھا وہ کسی بھی طریقے سے لکھا تھا، وہ کسی ایک بندے کے لیے لکھا تھا یا پوری قوم کے خلاف لکھا تھا، ہے نا، اسرائیلی قوم کے خلاف، وہ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا، وہ جو دستاویز تھے، وہ چٹھیاں جو تھی، وہ نوشتے جو تھے، وہ کیا کر دیے، صلیب پہ جڑ دیے، ہے نا۔ یہ کلسیوں کی کتاب میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو کچھ بھی ہمارے خلاف لکھا ہوا تھا، جو ہم اس میں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اسرائیلی قوم کے خلاف کسی نے بھی لکھا تھا، حکومت اور اختیار والوں نے لکھا تھا، کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے تقریباً حوالے پڑھے ان میں کیا تھا، حکومت کی طرف سے، یعنی بادشاہ کی طرف سے کہہ لیں، پرائم منسٹر، صدر کی طرف سے جو کہہ لیں حکم جاری ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، جس طرح کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ ابھی بھی جیسے کہہ لیں کہ جب یہ کرونا کا شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارے مسیحیوں کے خلاف یہ جو قانون جو ہے بنا ہے کہ جی ہم نے چرچز نہیں جانا، یا ہم نے کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملا نہیں سکتے، تو یہ کیا ہے، حکم جاری ہوئے ہیں، کس کی طرف سے ہوئے ہیں، ہمارے جو حکومت والے ہیں، وہ جو صدر ہیں، وہ جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ حکم جو ہے وہ جاری ہوا ہے مسیحیوں کے خلاف، ہے نا۔ تو اس لیے کیا ہے، حکومت والوں کے اختیار میں جو یہ سارے حکم جو تھے ہمارے خلاف جو تھے، اور پھر آپ کو اس کا ہٹلر کا بھی یاد ہوگا، ہے نا، کہ اس نے کیا کیا تھا، پوری اسرائیلی قوم یا یہودیوں کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں دنیا سے ان کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہمارے خلاف لکھا ہوا تھا وہ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا، کیلوں سے اس کو صلیب کے اوپر جڑ دیا، اور حکومت والوں اور اختیار والوں کو کا کیا کیا، برملا تماشا بنایا، ہے نا۔ اور حکومت اور اختیار والے جو ظاہری ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی ہمارے صدر جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، اور یہ جو کہہ لیں اسٹارٹنگ میں خدا نے جو میں اب بعد میں کرنا چاہ رہی تھی بات، وہ خدا نے ہمیں خود ہی بتایا کہ جو ہمارے خلاف یہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جو کچھ تویز دھاگے کرتے ہیں لوگ، یعنی وہ بھی جو
उनकी भी आपको पता है कि एक बादशाही है, हुकूमतें हैं, और वो भी जो हमारे खिलाफ करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, सलीब पे कीलों से उसको जड़ दिया। अब हमारे ऊपर ये जो कोई कहते हैं ना कर देता है, तो उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए जब भी कुछ आप ये कहते हैं, तो आप खुद ही उसको मौका देते हैं या खुद ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि आप खुदावंद के इस जो खुदावंद ने हमारी खातिर कुर्बानी दी, खुदावंद ने उनको मिटा दिया। इस आयत पे कह लें कि इस खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पे फिर आप यकीन नहीं करते, है ना? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का अगर आपको जैसे कह लें कि थोड़ी अ, कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं कि वाक़ई नहीं उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, उसका असर हो रहा है मेरे ऊपर, है ना? इसी वज़ह से मैं बीमार हो रही हूँ, इसी वज़ह से हमारे घर से तंगी तकलीफ़ नहीं जा रही, है ना? तो हमारे अंदर एक वो डर, एक खौफ़, एक साफ़ अगर कहा जाए कि शक होता है। तो उस शक को मिटाने के लिए आप ये खुदावंद यीशु मसीह का जो खून बहा था, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों से जब कील ठोके गए, तो वो वाला खुदावंद यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लगाएँ, अपनी सोचों के ऊपर लगाएँ। और जिस तरह आपको याद होगा कि जब हम वो पढ़ रहे थे कि उसने कहा जिसके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उसने क्या कहा कि मेरी बेतकादी का इलाज कर। तो अपनी बेतकादी के इलाज के लिए खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लगाएँ, ताकि आपका पूरा ईमान, पूरा भरोसा, पूरा तवक्कल खुदावंद पे हो। और जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा होता है, ओ जी मेरी चाची ने कर दिता, भाभी ने कर दिता, ये कर हम कहते हैं ना, तो हमारी फैमिली में से ही ये जो शैतानी लोग हैं या जो कुछ करते हैं, वो उन्हीं को इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके पीछे जो एक जो हमारा दुश्मन है असल में, वो कौन है? वो ही इब्लीस है, वो ही शैतान है ना? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, वो जो हुकूमत वाले थे, वो इख्तियार वाले जो थे, यानी वो जो शैतान है, उसका क्या कर दिया, बरमला तमाशा बना दिया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बचाया। तो इसलिए हमें इसको जैसे कह लें कबूल करना है, हमें इसको पूरा यकीन करना है कि जो कुछ भी अ, वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे जो इतना बड़ा जैसे कह लें जो हमारे खिलाफ लिखा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने वो बिल्कुल मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। वो जो ये लिखा हुआ था कि मैं पूरी कौम को, जैसे हिटलर भी देखें, वो उसने कहा वो खुद ख़त्म हो गया, लेकिन यहूदी कौम को, खुदावंद के लोगों को वो ख़त्म नहीं कर सका। अब भी देखें दुनिया में जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा खुदावंद के लोगों की है ना? तो इसलिए जो शैतान है उसका क्या कर दिया खुदावंद ने, उसको हरा दिया, उसको उसका बरमला जो है तमाशा बना दिया, उसको कीलों से जड़ दिया, जो भी उसने हमारे खिलाफ किया, है ना? तो इसलिए खुदावंद मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतना बड़ा कह लें कि वो किया है। ये देखें खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, तो खुदावंद यीशु मसीह का जो कील ठोके गए थे वो इस जगह पे कहते हैं कि ठोके गए थे कि दरमियान में से, यानी ये वाली जो जगह होती है, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की कोई हड्डी जो थी वो तोड़ी नहीं गई थी, टूटी नहीं थी, है ना? जब पसली पे भाला मारा था तब भी हड्डी वो नहीं टूटी, जो कोड़े मारे गए, जो भी खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर किया, तो उससे खुदावंद यीशु मसीह की हड्डी जो थी वो नहीं तोड़ी गई थी। और ये कुछ दिन पहले ही मेरा ख़्याल मैं उससे बात कर रही थी, है ना? तो मैंने इस को पूछा कि अ, यानी ये सबके लिए है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो नविश्ता था या ये जो नबूवत थी वो सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी। ये सारे रास्तबाज़ों के लिए नहीं है या सारे हम कह लें मसीहियों के लिए नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए नबूवत हुई थी। उसके लिए नविश्ता हुआ था ये कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी तोड़ी जाएगी, है ना? क्योंकि हम अगर
देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के जो सारे शागिर्द थे, उनको किसी को सलीब पे चढ़ाया गया, किसी को आरे से चीरा गया, और पालूस रसूल का हम देखते हैं कि उसका सर जो था वो कलम किया गया था। तो इसलिए अगर हम ये क्योंकि मैं अपनी एक सवाल था तो उसका जवाब मुझे मिला, तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ जिनको ये था किसी के दिल में, तो उसके लिए कि ये नबूवत जो थी वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी। क्योंकि अगर हम सारे मसीहियों के लिए ये करें तो फिर तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से ज़्यादा मेरा ख्याल या पालूस रसूल से ज़्यादा कोई भी रास्तबाज नहीं था, है ना? लेकिन उनका जब सर कलम हुआ तो वो हड्डी टूटी, है ना? जब आरे से चीरा गया, लिखा है कि सॉरी, ये लिखा नहीं है उसमें कि आरे से चीरा गया, लेकिन ये हमें हिस्ट्री में मिलता है। तो उसकी हड्डी जो थी वो टूटी थी, है ना? तो इसलिए ये नबूवत जो है ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पे पूरी होती है कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी गई थी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के जब कील ठोके गए थे, तो ये वाली जगह थी जहाँ से कील जो था गुजरा था, ये दरमियान वाली, है ना? दोनों हड्डियों के दरमियान से खुदावंद यीशु मसीह का जो कील था वो गुजरा था हाथों में से, और इसी तरह पाँव में से भी वो कील जब गुजरा था, तो वो कल मैं आपको दिखाऊंगी, कल नहीं शायद मंडे को हम वो देखेंगे। तो कील जहाँ से गुजरा था वो पाँव से, वहां पे भी हड्डी नहीं थी। तो इसलिए मेरे और आपके यीशु ने हमारी खातिर वो जो सब कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया था, पढ़ा गया था, उसको मिटा दिया। खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में जो कील ठोके गए, उससे जो लिखा हुआ था, जो हाथों से लिखा था, वो मोहर जो लगाई गई थी, वो मिटा दी है मेरे और आपके यीशु ने, है ना? जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो हमारे ऊपर जैसे कह लें मौत के फतवे जो थे वो जारी किए गए थे, वो मिटा दिए गए हैं और वो ख़त्म हो गए हैं। सुरैया को और मेहर सिस्टर नायला, जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ तो अ, हमारे साथ वाली थी, एक मुस्लिम लेडी थी, तो उसने जैस मेरी और जैसे मेरे बच्चे का जो होने वाला था, उसके खिलाफ कोई जादू टोना कुछ भी उसने किया था कि मेरी मेरी और बच्चे की जो ज़िंदगी है, उसको ख़त्म करने के लिए ये बालों पे शायद आप लोगों को पता हो कि वो कुछ करते हैं, है ना? और या तो ये जैसे कह लें कि उसने ना बालों पे कुछ करके वो रोज़ ही मेरे घर में फेंक देती थी। तो काफ़ी दिन तो मैं उसको जैसे कह लें कि इग्नोर करती रही। रोज़ जब झाड़ू लगाना तो बालों का एक गुच्छा जैसा होना, तो हमने एक पास्टर से पूछा, मेरी बड़ी जो सिस्टर नाइला जो है, तो उसने पास्टर से पूछा कि इनके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसा हो रहा है ना? तो उन्होंने बताया कि ये इसकी ज़िंदगी पे और इसके बच्चे की ज़िंदगी पे ख़त्म करने के लिए ये कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, यानी वो जो ये जादू-टोना जो करते हैं। और हमें जब पता चला, हम दुआ में थे। हम ना तो डरे, लेकिन ये जो समीना है ना? उसने क्या किया, कहती नहीं नन्ही इसको जला देते हैं हम। और आप यकीन जाने कि तकरीबन ये जो माचिस की 2-3 डिब्बियाँ होती हैं, वो उसने पूरी लगा दी, लेकिन वो बाल नहीं चले, है ना? तो मैं उसको बोलती रही, मैंने कहा नहीं छोड़ परे इसको पानी में बहा दे या इसको फेंक दे परे, छोड़ दे, ना जला। बताने का ये मकसद है कि खुदावंद मेरे यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए जो कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, वो सब कुछ मिटा दिया है। खुदावंद का शुक्र है कि देखिए मैं भी सही सलामत ज़िंदा हूँ और वो सब पीरियड जो था वो भी ठीक-ठीक गुज़रा। मेरा बेटा अभी तक ठीक है, जो बड़ा बेटा है उसने किया था। वो बेशक उसमें से वो जो प्रेग्नेंसी में यानी उसमें वो पीरियड बहुत सख्त था और बड़ी मुश्किलें उसमें आईं, बड़ी रुकावटें आईं, लेकिन खुदावंद ने बड़े ही जैसे कह लें अपने हाथ को बढ़ा के मुझे भी बचाया, बेटे को भी बचाया और हम देखें अभी तक ज़िंदा हैं और खुदावंद के काम को कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे खिलाफ जो कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है,
اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ سب جو ہے خدا یسوع مسیح نے یہ جو کچھ لکھا گیا ہے میرے اور آپ کے یسوع نے اس کو مٹا دیا ہے, اس کو ختم کر دیا ہے. ان جو ابلیس کے منصوبے تھے, حکومت والوں کے, اختیار والوں کے, خداوند یسوع مسیح نے وہ سب ہمارے اوپر سے ختم کر دیا ہے. اور ہمارے ساتھ خداوند نے کہہ لے وعدہ کیا ہے تسلی کا, اطمینان کا. میں ایک صرف حوالہ آپ میں پڑھنی ہے جس میں ہمیں خداوند نے کیا کیا ہے کہ جو کچھ بھی خداوند ایک نے باپ نے یعنی غصے میں یا کہا تھا کہ جی میں اس کو بالکل اسرائیلی قوم کو ختم کر دوں گا, بھسم کر دوں گا, تو اب کیا ہے خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے بھیج کے ہمارے ساتھ صلح کی, ہمارے ساتھ تسلی کا کلام کیا. میرا خیال ہے پہلا تھسلونیکیوں نکالنا 5 باب اس کی 23 آیت, یعنی خداوند نے اب کیا کیا ہے, ہمیں تسلی کا کلام دیا ہے. اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے تو جب شاگردوں کے پاس آئے ہے نا, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے ہاتھ بڑھا کے ان کو دکھائے کہ دیکھو. اور خداوند جب خداوند یسوع مسیح نے ہاتھ دکھائے تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر, برکت دی. تو اس لیے اب ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری صلح کرا دی ہے باپ سے, اور ہمارے ساتھ وہ جو خداوند کے منصوبے تھے یعنی کہہ لیں ہمارے خلاف, وہ ختم کر دیے ہیں. جی ملا ہاں جی, انجنا, ہاں ہاں جی جی. پڑھنا. چیپٹر باجی سوری. پہلا تھسلونیکیوں 5 باب 23 آیت. پہلا تھسلونیکیوں 5 باب 23 آیت. हाँ जी मिल गया. ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਿਆ ہاں ਰਹੇ. جی, تو ਆਮੀਨ. دیکھیں اب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ کیا کرے گا, ہمیں پورا پورا پاک کرے گا, صاف کرے گا, اور اس نے ہمیں تسلی دی ہے, اطمینان دیا ہے. اس لیے وہ جو ایک کہہ لیں دشمنی تھی, یعنی خداوند کی طرف سے بھی جو ہمارے خلاف جیسے کہہ لیں خداوند نے بولا, اور جو شیطان نے یا اس کے جو منصوبے تھے حکومت والوں کے, اختیار والوں کے, اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے ختم کر دیا. اور نہ صرف باپ کے ساتھ ہماری صلح کرائی, خداوند یسوع مسیح نے یعنی ہمارے ساتھ اب تسلی کا, اطمینان کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ میں پورا پورا آپ کو, یعنی یہ پورے پورے کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری ہڈی نہیں توڑی جائے گی, یا یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سب کافی مسیحی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح کے سارے شاگرد ہی سوائے یوحنا عرف کے ہے نا, سب ہی شہید ہوئے تھے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مارا گیا تھا ہے نا. لیکن پورے پورے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میں رہتے ہوئے ہم جو نیک کام کرتے ہیں, یعنی ان ہاتھوں کو برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان ہاتھوں کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں خداوند ہمارا خدا پورا پورا یعنی خداوند کی بادشاہی میں, خداوند کی حضوری میں لے کے جائے گا ہے نا. تو اس لیے جو بھی ہم غلط کام کرتے تھے یا جو بھی ہے, خداوند یسوع مسیح نے اس کی ہمیں معافی دی ہے, اس سے ہمیں نجات دی ہے. اور اب جو ہے خداوند ہمیں خداوند کی حضوری میں پورا پورا جو ہے وہ لے کے جائے گا. اس نے ہمارے ساتھ تسلی کا, اطمینان کا کلام کیا ہے جو ہمیں نہیں مل سکتی تھی ہے نا. وہ بار بار جیسے ہم نے پیچھے پرانے عہد نامے میں وہ ورسز جو پڑھی ہیں نا, کہ وہ خداوند جو تھا وہ بار بار ان کے لیے اس طرح کہا کرتا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جا, موسیٰ کو ہے نا کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا, اس قوم کو, اس برگشتہ قوم کو ہے نا, اس نافرمان قوم کو ہے نا, تو بھسم کر دوں گا. تو اس لیے وہ بھی جو خداوند نے ہمارے خلاف کہے اور جو شیطان نے لوگوں کو استعمال کیا, یعنی حکومت والوں کو, بادشاہوں کو, صدر کو, پرائم منسٹر کو, یا ہے نا کسی کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا ہے نا, تو خداوند نے کیا کیا, وہ سب کچھ ہماری زندگی سے مٹا دیا. اور اب یہ جو ہاتھ ہیں
हमें खुदावंद ने दिए हैं ताकि हम बरकत दें दूसरों को, है ना? दूसरों के लिए इन हाथों को दुआ के लिए उठाएं। आपको याद होगा कि बहुत सारे हमें हवाले मिलते हैं कि हाथों को उठा कर दुआ करें। तो ये हाथ हमें दिए हैं खुदावंद ने, अब जो है कि हम अपने खुदा के लिए इनको इस्तेमाल करें और दूसरों को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करें। और अ, एक छोटा सा कि जैसे हम जो कुछ लिखते हैं उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर आज माफ़ी माँगे इन हाथों को किसी भी तरह आपने चोरी के लिए या किसी के जैसे लिखने के लिए इस्तेमाल किया है ना? वो तो हमारे खिलाफ थे, लेकिन जो कुछ हमने किया है उसकी आज हम माफ़ी माँगे। जिस किसी ने भी, जैसे आजकल आपको पता है चैट की जाती है या ख़त हम लिखते हैं, अ फ़ोन पे फ़र्ज़ करें हम किसी के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, है ना? तो क्या करें, हम इन हाथों को इस्तेमाल करें, इन उँगलियों को इस्तेमाल करें। तो ये उँगलियाँ जो हैं, ये जंग के लिए हमें दी गई हैं। ये हाथ जो हैं यानी जंग करने के लिए इस्तेमाल हम करें, है ना? 18 ज़बूर में लिखा है कि वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। मेरा ख़्याल है इसी तरह लिखा है ना? तो ये हाथों को अब खुदावंद के लिए हम इस्तेमाल करें, है ना? क्योंकि खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की वजह से, हाथों पे कील ठकवाने की वजह से ये हाथ जो हैं अब हमारे पाक हुए हैं और इनको हम पाक कामों के लिए इस्तेमाल करें, है ना? ना कि बदी के लिए, ना कि चोरी के लिए, ना कि जो हम किसी के खिलाफ लिखते हैं या झूठी बातें लिख देते हैं, जी हाँ, वाक़ई उसने ये किया है या तो ये सब कुछ जो कहीं भी हमने ये किया है, तो आज हम सब माफ़ी माँगे खुदावंद से, क्योंकि ना सिर्फ़ हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, बल्कि हम भी अपने खिलाफ जो है खुद से ही ऐसे-ऐसे काम करते हैं। तो उनसे भी खुदावंद आज हमें आज़ाद करने के लिए, बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है ना? तो इसलिए जो हमने इन हाथों से गलत काम किए हैं, हम सबको अंदर से आपके दिल में जो कह लें, किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि इन हाथों को आपने किन-किन गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया है ना? यानी चोरी के लिए हो सकता है या किसी के खिलाफ आपने कुछ लिखा है या और भी हम गलत इन हाथों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आज खुदावंद यहाँ यहाँ पे मौजूद है, हमारे दरमियान है, तो इन हाथों को ऊपर उठाएँ। मेरे जिस तरह कल दीदी ने और माया ने कहा कि खुदावंद ने उनको गाइड किया, रहनुमाई की कि हम घुटने टेक के दुआ करें, है ना? तो आज मैं कहूँगी कि सब अपने हाथों को उठा के दुआ करें। ये शायद मैंने पहले भी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन फिर से मैं कर रही हूँ। क्योंकि वो इस जैसे कह लें टॉपिक के साथ रिलेटेड है कि खुदावंद ने आज से कोई 7 साल पहले, 6-7 साल पहले खुदावंद मैं चर्च में खड़ी थी, तो खुदावंद ने मुझे अपनी सलीब दिखाई थी। सारा ये जो इस तरह के खून, खुदावंद यीशु मसीह के खून हाथों से बह रहा है, मुँह से बह रहा है और मैंने नीचे देखा कि आग ही आग लगी हुई है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे मेरी तरफ देख के कहा कि जब हम हाथों को उठा के दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, तो शैतान जो है उसको आग लग जाती है। तो मैंने क्योंकि ये विज़न में देखा था कि आग लगी हुई है खुदावंद यीशु मसीह के इर्द-गिर्द और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मैंने भी अपने हाथ देखो ऊपर उठाए हैं। तो शैतान जो है वो हार गया है, उसको मैंने शिकस्त दी है और उसको आग लग रही है। तो इसी तरह जब आप, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था, फ़तह पाई थी शैतान के ऊपर, उसकी सारी कुदरत पे। तो जब हम भी हाथ उठा के दुआ करते हैं, तो शैतान को आग लग जाती है और जब हम ताली बजाते हैं, तो वो पंजाबी में मुझे लफ्ज़ वो बहुत अच्छा लगता है, उर्दू में पता नहीं क्या है, कि वो बौंदल जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आती, वो पागल हो जाता है ऐसे जैसे उसका तो इसलिए हाथों को उठा के, ताली बजा के दुआ किया करें। इन हाथों को क्या करते हैं, जब हम सुरैया ने मेरा ख़्याल है एक दफ़ा टेस्टिमनी शेयर की थी कि वो जब ताली बजा रहे थे, तो वो घोड़ों की टापों की तरह
उनको फील हुआ था कि आवाज आई थी, है ना? तो जब हम ताली बजाते हैं इन हाथों को ताली बजाने के लिए, खुदावंद के लिए, और जब हाथों को उठाते हैं तो शैतान को आग लग जाती है, वो पागल हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आती। तो आज उसको आग लगाएं, हाथ उठाएं, और जो ताली बजा सकता है, अगर कोई इर्द गिर्द मतलब सो नहीं रहे लोग डिस्टर्ब करने, तो ताली भी बजाएं। मैं नहीं बजा सकती क्योंकि मेरी बेटी साथ उसकी क्लास हो रही होती है, यानी वो ऑनलाइन उसकी क्लास चल रही है। तो लेकिन आप जो बजा सकते हैं वो जोर से ताली बजाएं और अपने हाथों को उठा के शैतान को जो है वो आग लगाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इन हाथों को पाक किया है। इन पाक हाथों को उठाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, खुदावंद बाप के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू। बैक टू अंजना। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। सचमुच इस ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੁਆ ਸਿਸਟਰ ਸਰੇਆ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो, प्रेयर द लॉर्ड। मैं कुछ इससे पहले कि हम प्रेयर करें कुछ कहना चाहती हूँ। रात से ही मैं जब तकरीबन सारी रात ऐसे ही होता रहा मुझे सारा कि इस बारे में मैं ये 3 जो बातें थी ना मेरे दिल में आती रही हैं कि बैद जो मैं काके को मैं कह रही थी, बैद जो यानी कि जो लाठी जो होती छड़ी जो होती है जिससे मारते हैं, है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि यीशु मसीह को कैसे मारा गया, है ना, कोड़ा या उसको एक और लफ्ज भी कोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, बैद, है ना, बे ये दाल तो और कांटे और कीलों की ना ये मेरे अंदर सारी राजें चलती रही है। कांटे, बैद और कील, कोड़े, ये 3 चीजें तो ये चलती रही है मेरे दिल में। तो जब हाथों की बात आ रही थी मैं सारी रात सोचती रही इन 3 बातों पर के कोड़ों के बारे में और बेद के बारे, और ये एक छड़ी जो होती है और कीलों के बारे में। तुम वही बातें जो अभी खुदा ने मतलब पहले स्टार्टिंग में शाहीन से कर दी बात, तो मैं जब किलों के बारे में रात को मैं सोच रही थी सोते हुए लेटे हुए तकरीबन 2-3 का टाइम था, तो मैं उसी वक्त में दुआ ही कर रही थी। मैं खुदावन जब हाथों पे मैं सोच में खुदावन तेरे हाथों से कील लगे है ना, कैसा कादर ही लगे, मैं ना क्वेश्चन माइंड कर रही थी कि खुदावन क्या है इसके पीछे, मतलब क्यों अगर तेरे सर पर कांटों का ताज रखा तो इट्स मैं खुद ही आंसर दे रही थी, खुद ही मैं बोलती जा रही थी कि ये इसलिए ऐसे हुआ, तेरे कांटों जब तेरे सर पर कांटे जो थे वो मतलब अंदर तक जो थे, जैसा जैसे शाहीन बता रही थी कि अंदर तक चले गए, यानी कि इतने बड़े थे, है ना। तो किस किस चीज के लिए ये कांटे जो थे अंदर गए सर के ऊपर, क्यों कांटों का ताज रखा गया, और क्यों अगर पाँव पे कील ठोकेगे तो क्यों ठोकेगे, अगर हाथों पर कील ठोकेगे तो क्यों ठोकेगे, है ना। तो मैं वो सारी बातें अभी जो शाहीन जो लास्ट जो सारी बातें की है वो सारी मैंने खुदावन को बताई, वो सारी बातें मैं कर रही थी कि खुदावन ये देख तूने तो हाथों पे अपने जो कील ठोकवाए हैं वो इसीलिए तूने खाए हैं ना, कि अगर हाथों से कोई कुछ गलत काम हुआ है, अगर हाथों से कोई गलत काम हुआ है, जो कोई बात ऐसा भी कोई भी काम जो हाथों से हम करते हैं, उंगलियां हैं, हाथ है ना, तो वो खुदावन तूने इसीलिए अपने हाथों पर कील जो है ठुकवाए हैं, है ना। तो मैं माफी मांग रही थी और इसी तरह की बातें जो मैं करती जा रही थी, और बिल्कुल शाहीन ने वही जुमले जो मैंने मतलब बोले उसी मतलब अभी रात को कि हाथों को उठाकर, है ना, हमारी मतलब उंगलियां जो है लड़ने के लिए, हमारी हाथ जो है वो लड़ने के लिए। तो मैं यही खुदा को कह रही थी और बोल रही थी कि खुदावन इसीलिए मतलब खुदावन तू हाथों को पाक कर, है ना, क्योंकि तूने इसीलिए अपना खून जो अपने हाथों पर कील के टुकवाए हैं कि हमारे हाथ पाक हो, है ना, हमारी उंगलियां पाक हो, हमारे हाथ पाक हो, ताकि हम जिस काम को हाथ लगाए वो काम पाक हो, है ना। अगर हम किसी को वही सिस्टर जो शाहीन ने बिल्कुल वही जुमला बोला कि मैंने रात को खुदावन को कहा, मैंने खुदावन हम ये हाथ बरकत देने के लिए, हालेलुया। तो मैं जब अभी जब ये बोल रही थी शाहीन, तो मुझे मतलब बिल्कुल मुझे वो मैं हैरान नहीं हो रही, क्योंकि हमारा खुदा, हम हैरान नहीं होते बल्कि हम खुश होते हैं, हम मजबूत होते हैं कि हमारा खुदा मतलब जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम बातें कर रहे होते हैं तो वो काम करता है ना।
तो खुदावन का शुक्र है कि उसने जो कुछ मैं मतलब बोला, मैंने अल्फाज जो बोले वो सिस्टर शीना ने बिल्कुल वैसे ही जो आखिरी जो हाथों के बारे में बोला बिल्कुल वैसे ही बोला। और पाँव के बारे में मैं खुदावन को कह रही थी, मैं खुदावन हमारे पाँव तूने पाँव पर इसलिए खाए कि मतलब कोड़े तेरे तुझे वो लगे कि हम बुरी राह में चले ना, हम गलत राहों पर न चले। तो मैं इस तरह की दुआ और करती जा रही थी, ये 3 जो चीजें थी वो मेरे ज़हन में आती जा रही थी और मैं खुद ही आंसर दे रही, खुद ही मैं खुदा से जवाब क्वेश्चन कर रही थी। सो खुदावन का शुक्र है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है और वाकई उसने हमारे गुनाहों के वास्ते अपना कफारा दे दिया है। उसने हमारी सलामती के लिए, हमारी रहाई के लिए, हमारी शिफा के लिए, हमारी बहाली के लिए उसने ये सारा कुछ किया है। और खुदावन का शुक्र है कि उसने हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आए इससे पहले कि हम अपने खुदा को नाम को जला देंगे, इससे पहले कि हम रूहानी जंग करें, इससे पहले कि हम उसके ज़रिए में जो कि अपने हाथों को उठाएं, तो जरूर है कि हम अपने जिस तरह के अभी जुमला बोला गया, अभी आयत सिस्टर शीना ने बोली कि अपने पाक हाथों को उठाकर हम दुआ करें। और मैं कॉपी पर लिख रही थी और मैंने ये सिस्टर शीना से पहले ही ये लिखा था कि हमें अपने पाक हाथ जो है वो उठाकर दुआ करनी है। हम आए खुदावन को अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। अगर आज हमसे कोई काम गलत सरजद हुए, अगर आज हमने हमारे हाथों से कुछ चोरी हुई है, अगर हमारे हाथों ने कोई गलत काम किए, अगर हमारे हाथों से कुछ गलत लिखा गया है, हम यीशु के नाम से उसको धोएंगे और अपने हाथों को पाक और साफ करेंगे, हम प्योरीफाई करेंगे। हालेलुया। और बेरी बेरी जी भी ज़ेरे शिंदर वेरे ज़ेरे रियोर बोरोस और बोसेरे रे बेरे रे ज़ेरे खुदावन इसलिए मैं बाप अपने आप को अपने हाथों को खुदावन तेरे लहू से पाक और साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, सेंटिफाई करते हैं। खुदावन तू हमें ले और अपने हाथों को तू खुद कहते थे कलाम लेकर कि तू हमारे हाथों को जंग करना और हमारी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। इससे पहले कि आप हम आगे बढ़े हैं बाप, हम यीशु के नाम से, इससे पहले कि हम दुश्मन के फाटकों पर चढ़ जाएं, इससे पहले कि हम दुश्मन को शिकस्त दें, इससे पहले कि हम दुश्मन को सर को कुचलें, हम अपने पाक हम तेरे लहू से अपने हाथों को पाक और प्यूरीफाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस कलाम से प्यूरीफाई करते हैं। इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया। और Lord, just in the name of Jesus, और hallelujah. मेरी भी बेरे ज़ेरे शिंद को ज़ोर और ज़ेरे मेरी जी भी ज़ेरे शिंद को तारीफ तेरे यार तेरी सितारिश करते हैं जनाब बादशाह। हम तुझे मुबारक करते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। इसलिए मैं अपने आप को, अपने हाथों को तेरे लहू से पाक और साफ करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, तेरे मार खाने से आज हम निजात रहाई और अपनी जिंदगी का असर करते हैं। यीशु के नाम से बाप पर अब हम बड़े कर लोगों को मांगते हैं, एक एक जिंदगी को बड़े कर लोगों को मांगते हैं, एक एक जिंदगी पर अब हम तेरे लोगों की शादमानी को, लोगों की रंगीनी को मांगते हैं। जहाँ बैठा है अब बाप हम बड़े कर लोगों को लगाते हैं। इनका नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप हवाओं में, फिजाओं में, या बात दरो दीवार पर बाप ऊपर नीचे दाएं बाएं मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में पड़ेगा लहू दौड़ता है। In the name of यीशु नासरी के नाम से बाप हालेलुया। और बेरी बेरी में जनरेशन द बॉल और ज़िदरी खुदावन तेरा लहू है बाप हमारी नस नस में, हमारी रग रग में काम करना शुरू कर दे यीशु के नाम से बाप, क्योंकि तूने इसलिए बहाया बाप। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ। और बेरी ज़िरे बेरे बेरे ज़िदरी शिंद बॉल और ज़िदरी तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी ताज करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र अब्बा तेरी बंदी के लिए, खुदावन आज की सारी आवाज के लिए, खुदावन आज के सारे कलाम के लिए, आज के तेरे इस पैगाम के लिए, खुदावन जिंदगी बख्श कलाम के लिए, शिफा बख्श कलाम के लिए, ताजगी देने वाला कलाम के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड हालेलुया। तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ तेरी ताज करते हैं कि तुम्हारा खुदा है, हम तेरे लोग, तुम तेरे चरागाह की भेड़ें हैं, तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हारी चौपानी करता है, तो हमें चौपान मुहैया करता है, तो हमें लाभ मुहैया करता है, तो हमारी चौपानी करता है अपने लोगों के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से। Lord, yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. हम साझा करते हैं यीशु नाम से रहते हैं, यीशु के नाम से बाप तेरा दाऊद का बाप ने कहा है Thank you, Jesus. तेरे हाथों का
काम करना सिखाता है और हमारी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। तू हमारे पाँव ऊंची जगह पर कायम करता है। ऐ बाप हम यीशु नासरी के नाम से बाप हम तेरी हजूरी में आते हैं। इन द नेम ऑफ in the name of Jesus, in the name of Jesus. अब हम तेरे कलाम को क्लेम करते हैं जो तूने खुदावंद कहा कि हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यीशु के नाम से बाबा ने किया। दावन तूने तेरा कलाम उसने हुकूमत और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमगा तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह का शादियाना बनाया बजाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु नासरी का नाम से यस माय लॉर्ड, खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार है। खुदावन तूने दुश्मन का, तूने इख्तियार वालों का अच्छा बनाया है। यीशु के नाम में बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तारीफ करते हैं। तेरी स्लीप के लिए, तेरा खून के लिए, खुदावन तेरा हाथ, तेरा सर पर कान पर ताज रखवाए जाने के लिए, तेरा हाथों पर कील को जाने के लिए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु के नाम में बाप, हालेलुया। दान इस्लाम में बाप हम तमाम बातों के लिए, उन तमाम बातों के बाद तेरी हज़ूरी में लेकर आते हैं, उन तमाम बीमारियों को तेरी हज़ूरी में लेकर आते हैं, उन तमाम नापाक कामों को तेरी हज़ूरी में लेकर आते हैं, उन तमाम बाप उन तमाम दस्तावेज को, हुक्म की दस्तावेज को बाप तेरे सामने लेकर आते हैं। यीशु के नाम में हालेलुया। हर तरह की हरामकारी को, हर तरह की बद किरदारी को, ज़िनाकारी को, बुत परस्ती को, और जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया और जो कुछ हमारे खिलाफ कहा गया, और यीशु के नाम से बाप हालेलुया। और हर तरह की बेतकादी और हर तरह की इल्जाम तराशी और मौत के फतवे जो हमारे लिए थे, हम यीशु के नाम से बाप उन तमाम बातों के बाप हम तेरे पास लेकर आते हैं। यीशु के नाम से बाप इन तमाम बातों पर बाप हम बड़े के लहू को चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के बाप हालेलुया। और बड़ी भी रिजर्वेशन दे आज तेरा लहू बाप दाऊद बाप हमारे लिए बहाया गया, हमारी शिफा के लिए बहाया गया, हर तरह की दाऊद बाप ना रास्ते के लिए बाप ना रास्ते को दूर करने के लिए, हर तरह की ज़िनाकारी को दूर करने के लिए, हर तरह की हरामकारी को दूर करने के लिए, हर तरह के होमोसेक्सुअलिटी के गुनाह को दूर करने के लिए, हर तरह के गुनाह को एकदम पोशीदा गुनाहों के लिए दाऊद तूने अपना खून बहा दिया। तूने अपना खून बहा दिया। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम तेरे ही पास लेकर आते हैं यीशु के नाम से बाप, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा ऐसा खुदा है जिसने अपना खून बहा दिया, जिसने हमारे लिए बाप तने कम 40 कोड़े खाए। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड, तमाम बातों के बाप हम तेरे लहू में छुपा देते हैं यीशु के नाम से बाप। जैसे कि आज खास उन हाथों के लिए तेरे तूने अपने लोगों की रहनुमाई की, बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने प्लान किया, बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले बाप कलाम कहता है कि इस्राएल पर कोई अफसूर ना चलेगा। यीशु के नाम में बाप हालेलुया तेरा कलाम करे कि इस्राएल पर कोई अफसूर ना चलेगा, इस्राएल पर कोई जादूगर ना होगा, जादूगरी ना होगी, तवीज दागा नहीं किया जाएगा। यीशु नासरी के नाम से एक पूरा ग्रुप पर बाप हम बड़े के लोगों को लगाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े के लोग में पड़ते हैं जिसकी जिंदगी में भी दावन जो भी डर है, जब भी खौफ है कि मेरे खिलाफ बोला गया है, खास तौर पर बाप सिस्टर विंदर के लिए, सिस्टर बाप बहन मुमताज के लिए और भाई रवि के लिए, और यीशु के नाम से बाप हालेलुया। और बरो रेजरेशन दे जो कोई भी और भी जो है बाप ये अगर डर आता है कि हमारे खिलाफ कुछ लिखा गया है, हमारे खिलाफ कुछ पढ़ा गया है, यीशु के नाम से बाप हम बाप उसको हुक्म देते हैं तो उनके बाप हम उस दुश्मन के इस बात को नहीं मानते हैं, हम बाप उसके मंसूबों को फेल कर देते हैं। यीशु के नाम से हालेलुया। हर तरह के लिखे को पढ़ा को बाप हम यीशु नासरी के नाम से ब्रेक कर देते हैं, यीशु के नाम से फेल कर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से जो कुछ लिखा गया, जो कुछ पढ़ा गया कि पूरे ग्रुप के खिलाफ, किसी जिंदगी के खिलाफ, हम यीशु के नाम से बाप उसके हाथों को काट डालते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हम दुश्मन को काट देते हैं बाप जो तेरे खिलाफ, तेरे लोगों के खिलाफ लिखा है, पढ़ा है, जादूगरी किया, तवीज धागा किया, यीशु के नाम से बाप हम हर तरह का असर ब्रेक कर देते हैं, जिंदगी को ब्रेक कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से बाप दुश्मन शिकायत है बाप, दुश्मन को प्यार हो जाए बाप, अपने मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए बाप, यीशु के नाम से काट डाला जाए, उसके हाथ काट डाला जाए यीशु के नाम से बाप। हालेलुया। हम दुश्मन को बेड़ी अपनाते हैं, उसके हाथों का बेड़ी अपनाते हैं, उसके पैरों का बेड़ी अपनाते हैं
Hallelujah. 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 Yes, Yes, तेरा Lord. द्वारा Yes. दिया हम Yes. तेरे लोग बता दिए जाए तेरे लोग मुकम्मल हो गए तेरे तेरा खून तक करे तेरा खून को यूज करे हम यीशु के नाम से हर एक जिंदगी पर अपने के लहू लगाते हैं एक एक जिंदगी पर अपने के लहू लगाते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नाम से तेरा खिलाफ जो भी मुकदमा बनाया जाएगा वो काम ना आएगा यीशु नाम से जो हथियार तेरा खिलाफ करता है कि जो हथियार तेरा खिलाफ बनाया जाएगा वो काम ना आएगा हम यीशु के नाम दुश्मन के तमाम तरह हथियारों को तोड़ डालते हैं यीशु के नाम से आज तो हमारे हाथ में हाथों को काट डालते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नाम से Hallelujah, 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 hallelujah. हम दुश्मन का जोर तोड़ते हैं बाप हम दुश्मन का कलम पर चढ़ जाते हैं बाप Yes, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. और हमारे बाजू पीतल के कमान को झुका देते हैं Yes, हालेलुया Lord. Yes, Lord. चिंता करा रहे थे यीशु के नाम से आज कुछ जाते रहे आज ना पाकी जाते रहे बाप आज जिंदगी जाते रहे बाप आज ना रास्ते जाते रहे बाप आज आकाश ना जाते रहे उस रास्ते जाते रहे यीशु के नाम से हालेलुया अब आप पीर की मदद हो जाए यीशु के नाम से हालेलुया यीशु नाम के नाम से आज हमारे रिश्तों में पच्चीस की आज है बाप यीशु नाम के नाम से हालेलुया यीशु Father God हालेलुया Yes, ओ Lord. Yes, तेरे मेरे जनरेशन का बड़ा दीदी आज अब आप Yes, my Lord. और अब अरे भी जनरेशन में गए जरी आज हमारे हाथ में तब बात किसी को बरकत देने के लिए आज हमारे हाथ में तब बात किसी की शिफात के लिए होते आज हमारे हाथ में तब बात तेरे नाम को जलाल देने के लिए होते तेरे प्रतिष्ठा तेरे नाम के लिए बाप हमारे हाथ में यीशु नासरी के नाम से बाप आज हमारे हाथों में तेरी वो कुव्वत तेरा वो कुदरत बाप तेरा लोह की कुदरत बाप काम करना शुरू हो जाए यीशु नासरी के नाम से बाप हालेलुया ये बेरे जनरेशन द बड़ा दीदी और आज दुश्मन शिकस्त खाया बाप हमारा हाथ उठाना तुझे पसंद आए यीशु के नाम से बाप यस लॉर्ड हालेलुया ये बेरे जनरेशन द बड़ा दीदी और दुश्मन का स्ट्रांग होल्ड हमारी जिंदगी से ब्रेक हो यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से बाप हालेलुया और आज दुश्मन से मुकम्मल हमारी दुश्मन की गिरफ्त जो ढीली हो यीशु के नाम से बाप यीशु नासरी के नाम से बाप एरे बेरे से जनरेशन द बड़ा दीदी यीशु के नाम से यस माय लॉर्ड तेरा शुक्र अदा करते हैं आज बाप हम तेरे लोग दान तेरे जो हाथों से खून निकला तेरे हाथों में जो कील ठोके गए बाप दान उस हाथों के खून का बाप हम अपने ऊपर लेते हैं इन द Yes, नेम ऑफ Lord. Yes, Lord. the name of यीशु नासरी के नाम से बाप यस फादर गॉड तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यस माला जो कुछ भी हमारे खिलाफ लिखा गया है बोला गया कहा गया है या बाप हम तमाम से ब्रेक कर देते हैं यीशु के नाम में इन यीशु द के नेम नाम ऑफ से। इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप यस यस फादर गॉड तूने कहा कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा यीशु नासरी के नाम से बाप आज हम दुश्मन को शिकार देते हैं अगर वो किसी भी लाज बीमारी की सूरत में आया है हम उसको शिकार देते हैं यीशु के नाम से बाप और किसी का जोर तोड़ देते हैं और दुश्मन के जोर को तोड़ देते हैं यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हम उसको शिकार देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस तेरे लोग की खिलाते यस माय लॉर्ड हालेलुया क्योंकि तूने बरमला तमाशा बनाया अब आप दुश्मन का बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं और आज Yes, हमें Lord, ये yes. क्या जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा और जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा हम यीशु नासरी के नाम से बाप पाकीज़गी को खोल देते हैं जिंदगी में हम यीशु यीशु के नाम नासरी से। होलीनेस को मान लेते हैं जिंदगी में यीशु नासरी के नाम से हर तरह की नाराजगी को दूर कर देते हैं यीशु जिंदगियों से यीशु नासरी के नाम से हालेलुया ये बेरे से जनरेशन द बड़ा दीदी आज हमारी रूह पवित्र जान पाप प्यूरिफाई हो जाए पाप तेरे लहू के वसीला से इन द नेम Yes, ऑफ जीसस यीशु के नाम से यस यस फादर गॉड हालेलुया तेरा Yes, शुक्र yes. तेरी तारीफ हो आज मौत के जो पत्ते थे अब आप हम उनको अब बाबा ब्रेक कर देते हैं यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से यस फादर गॉड तेरा शुक्र अदा करते हैं यस माय लॉर्ड आज अब आप आस्तर की तरह अब आप हमें अब आप सैंटिफाई कर आस्तर की तरह हमें तैयार कर दाऊद जिस तौर से वो बादशाह के हुजूर में हाजिर हुई तो दाऊद पूरी तैयारी के साथ हाजिर हुई पूरी तैयारी के पूरे जहो जलाल के साथ है बाप और तब तेरे बेटे तब है बाप दाऊद बादशाह ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और यस माय लॉर्ड आज आप अपना हाथ बढ़ा और आज दुश्मन के हाथ हमारी तरफ से अब बात काट डाला जाए यीशु
यीशु के नाम से बाप, और तेरा आशा हमारी तरफ बढ़े, और तेरा लव की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करे, यीशु के नाम से बाप। यस गॉड, हालेलुया, और ये जनरेशन दे मेरे जिंदगी तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम में बाप, तेरा शुक्र करो, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस पर आज हर तरह की अंदरूनी जो बीमारियां हैं और बीमारियों की तासीरें अब काट डालनी चाहिए यीशु के नाम से बाप, हमारी यीशु के जिंदगी नाम से से, यीशु यस नाम के नाम से बाप, लाख बीमारियां जाती रहे बाप, शुगर जाती रहे बाप, डॉक्टर जाता रहे बाप, कैंसर जाता रहे बाप, यीशु के नाम से बाप, हेपेटाइटिस यीशु के जाती नाम रहे बाप, लिवर की बीमारी जाती रहे बाप, काना की बीमारी जाती रहे बाप, यीशु यीशु के के नाम नाम से बाप, किडनी की बीमारी जाती रहे बाप, यीशु के नाम से बाप, चेस्ट की बीमारी जाती रहे बाप, चेस्ट यीशु के नाम से क्लियर आउट करे लोगों के, यीशु के नाम से बाप, हालेलुया, गला की बीमारी जाती रहे बाप, थायराइड की बीमारी जाती रहे बाप, यीशु नाम के नाम बाप, यस माय लॉर्ड, यस रिसोनिया यस जाती रहे बाप, और खुदावन ए बाप हरनिया जाता रहे बाप, यीशु के नाम से यीशु के यस नाम पे, यीशु नाम के नाम से यस माय लॉर्ड, दावन अब आप तेरा शुक्र करते हैं दावन, अब आप हड्डियों की बीमारी जाती है बाप, हड्डियों का दावन जो भी दावन वीकनेस है, हड्डियों की जो भी दावन दर्द है वो दर्द जाती है बाप, यीशु यीशु नाम के के नाम नाम से, से यस लॉर्ड, यस हालेलुया दावन, हड्डियां जोर पकड़े, कोर पकड़े बाप, अपने पूरे यस जोर में यस आए बाप, यीशु के मसल नाम अपने से, पूरे जोर में आए बाप, तेरे लोगों के यस यस माय लॉर्ड, हालेलुया, खास करके बाप सिस्टर शाहीन के लिए बाप, हम तेरी तारीफ दस्ताज करते हैं खुदावन, तेरी बंदी की रूह बदल जान को और बैक को और कमर को अब आप हम बड़े के लहू में पाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बाप तेरे लहू की कुदरत काम करे, तेरे कलाम की कुदरत काम करे, हम तेरी यस बंदी की सारी कमर के दर्द जाते रहे इन द नेम ऑफ जीसस, राइट यस नाउ यस अभी और इसी वक्त का तेरे लहू की कुदरत छुआ तेरे बच्ची को, तेरे बच्ची मुकम्मल तौर पर तेरे बात सेहतमंदी में, बहाली में, ताजगी में, जोर में, कुव्वत में, अब आप अकाबों के साथ जोर आए तेरे बच्ची की जिंदगी में, यस माय लॉर्ड, इसमें यस जिंदगी बसर करे, यस यस फादर हालेलुया, और तो बहुत ज़्यादा यस शिंदे बेरे जिंदगी, यीशु जी के और बहुत ज़ोर शिंदे बेरे जिंदगी, हर की स्किन की बीमारी जाती रहे, डिजीज स्किन डिजीज जाती रहे बाप, स्किन यीशु के एलर्जी नाम जाती से, रहे बाप, यस नास के नाम से यस माय लॉर्ड, हालेलुया, और बहुत यस ज़्यादा लॉर्ड, शिंदे यस बेरे जिंदगी, यस नास के नाम से बाप, यस माय लॉर्ड दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज बाप, हर तरह के दावन जो भी दावन हमारी जिंदगी में कमी है, कमजोरी है, तेरा लहू के उस तरह बाप वो जोर में बदल जाए, यस फादर गॉड तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम साज ला पता यीशु नाम को देते हैं, पर आज हर तरह की नस्ली लानते या बाप हमारी जिंदगी से ब्रेक हो जाए, यीशु नासी के नाम से बाप हर तरह की नस्ली लान से ब्रेक हो जाए, यीशु नासी के नाम से बाप, यीशु के नाम से यीशु बाप, के नाम से, हालेलुया, तो आज तेरे लोगों पर तेरे लहू की रंगीनी आ जाए बाप, आज तेरे लोगों की जिंदगी में बहाली आ जाए यस बाप, उन्नति आ जाए यीशु बाप, के नाम, यीशु के नाम से बाप, और दुश्मन का जोर टूटता चला जाए बाप, यस यस फादर गॉड, यस हालेलुया, यस ओ माय लॉर्ड तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश करते हैं जलाल के बादशाह, हम तुझे मुबारक करते हैं, यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, हम यीशु नाम को मुबारक करते हैं, यीशु नाम की बड़ाई बयान करते हैं, यीशु नाम को बढ़ाते हैं, यीशु नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु की परस्तिश करते हैं, यीशु को सजदा करते हैं, हमारे सारे सजदे हमारे मुनाजी, हमारे खुदावन, हमारे मसीहा के लिए, हमारे शाफी के लिए, ऐ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज हमारा हाथ उठाना, दान हमारा प्रस्तिश करना, हमारा कलाम सुनना, दान हमारी प्रेयर करना, हमारी इल्तिजा करना, सारा कुछ अब बात तेरी हुजूरी में बखूर के माने पहुंचे, और यीशु के नाम हमारे एक अल्फाज है बाप तेरी हुजूरी में जाए, एक अल्फाज भी रहेगा ना जाए, यीशु नासी के नाम से बाप, यस यस क्योंकि उसी ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, सो हम यीशु नाम की कुदरत से अब आप दुआ को मांगते हैं, यस माय लॉर्ड तेरा शुक्र तारीफ इस्ताई करते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अल कदर नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी, आज मैंने खुदा उनकी हुजूरी को जैसे कह लें, मैं जिस दिन से ये हम खून पे बात कर रहे हैं तो खुदा यीशु मसीह की कवरिंग को, खुदा यीशु मसीह के खून को मैं हर उसमें देख रही हूँ, और उसमें मैंने शुरू में तो ऐसे देखा जब सुरैया ने प्रेयर की शुरू की कि
میں نے دیکھا کہ ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم جو گروپ ہے ہمارا، سب نے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہاتھ جو ہیں ہم سب ایسے خون میں ہی چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر سے روشنی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، جس طرح ہم نے پریئر میں اور سریا نے بھی بولا کہ اس نے پاک کیا ہمارے ہاتھوں کو، ہے نا، یسوع کے خون سے ہم دھلے ہوئے ہیں، تو وہ روشنی جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہم سب نے ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ روشنی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں۔ پھر میں نے مڈل میں ایسا دیکھا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ کیا ہوا تھا، یا ہم خود بھی کئی دفعہ، جیسے کہ ہم نے ابھی شروع میں ہی دیکھا کہ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے اس ایک عورت کو دیکھا ہے، مطلب وہ ایسے جیسے بڑی اس میں تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اور وہ جیسے چیخے مار رہی ہے نا، تو میں نے دیکھا کہ جیسے خداوند کا ہاتھ اس پہ آیا ہے، تو اس کے اندر ایک پیس آ گیا، ایک تسلی آ گئی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ جو کوئی کسی ایسی سچویشن میں سے گزر رہا ہے، شاید جیسے آپ کو یاد ہوگا سشیلا نے ٹیسٹ منی دی تھی کہ وہ بار بار اس کا ایسی جو بدروہیں ہیں وہ پیچھا کرتی ہیں، اور وہ اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ خودکشی کرے۔ اور یہ ہم سب پہ ہی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم کیسی ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ مطلب اس سے اچھا تو میں ماری جاؤں، یا اس طرح کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں یا بول دیتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی ہم نے بولا ہے یا ایسا کوئی ہمارے خلاف کر رہا ہے، یا ہم نے خود بھی اس طرح کا بولا ہے یا سوچا ہے، تو آج خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں بحال کیا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح جیسے کہ ریلیٹ ہے کہ ہم موت کی طرف، جس طرح ان کا موت کے وہ فتویٰ جو تھا جاری ہو جاتا تھا، یا خدا نے ان کو کہا کہ ان کے پر قہر نازل ہوگا، تو یا ہم نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی اسٹڈی میں سیکھا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو جن کی سزا کیا ہے، حرام کاری، جناح کاری کی، اور ماں باپ کے ساتھ جو ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بے عزتی کرتے ہیں، تو اس کی سزا بھی موت تھی۔ تو آج خدا نے یہ جو ساری اور بھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے نا سریہ شاید، کہ اس سے بھی ہمیں آزاد کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں بھی معافی مانگی ہوئی، تو آج خدا نے پھر سے ہمیں موقع دیا، پھر سے ہمیں آزاد کیا، بحال کیا۔ تو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ یعنی مرنے کے اس میں تھی، لیکن خدا ان کا ہاتھ آیا اور اس نے ہمیں یعنی بچا لیا، کوئی ایسی سچویشن میں سے گزر رہا تھا۔ تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی، میرا بیٹا جو ہے اس کو اس طرح وہ مارے یا اس طرح ختم کرے، لیکن ہمارے ہی پیچھے کچھ ایسے غلط کام ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تو لیکن خداوند نے آج ہمیں آزاد کیا۔ گاڈ بلیس یو۔ اور کسی کو بھی کوئی تسلی ملی ہے، کوئی خداوند نے آپ کو دکھایا ہے کچھ، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ کیا جی ہوا؟ جی، کسی نے کچھ کہنا ہے؟ جی سونیا۔ ہاں جی، پریز دی لارڈ۔ ہاں جی، ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਡੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲੀ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਸਟ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Praise God, praise God, ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। praise the Lord, praise the Lord۔ ہاں جی، کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے، یا کسی کو تسلی ملی ہے، یا کچھ خدا نے دکھایا ہے، بتایا ہے، تو شیئر کر سکتے۔
जी माया। दीदी तसल्ली मिली है और जो मेरा सवाल था उसका जवाब दिया इसमें। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। जी, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। जी, किसी और ने कुछ खुदावंद कलाम किया आपके साथ? जी बाजी, खुदावंद का बड़ा शुक्र है, आपने बड़ा अच्छा कलाम दिया और खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल करे। तो बड़ी तसल्ली इत्मीनान मिला खुदावंद के कलाम से, तो खुदावंद का शुक्र हो। हाँ, जी, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, किसी और ने कुछ कहना है कि हम फिर मीटिंग, क्योंकि फिर कुछ लोग बाद में शेयर करते हैं, मैंने ये मुझे तसल्ली, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब जैसे हमें को मिला है तसल्ली या कलाम हुआ है, जैसे सुरैया ने शुरू में ही बता दिया कि उसने जो वो दुआ कर रही थी तो खुदा वो ही कुछ बोला है ना? तो इस तरह क्या होता है कि जो फर्ज करें बाद में भी सुनते हैं उनका भी एक ईमान बढ़ता है, और मेरा भी ईमान बढ़ता है कि खुदावंद जो कुछ बोल रहा है वो मैं नहीं बोल रही, वो खुदावंद हमारे साथ बात कर रहा है ना, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ना? लेकिन हमारे बाप को, हमारे खुदावंद को पता होता है कि इसको ये इस कलाम की ज़रूरत है ना? तो इस तरह फिर मेरा भी ईमान बढ़ता है कि मैं कुछ अपनी मिलावट नहीं कर रही, जो खुदावंद चाहता है वही बोल रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए ज़रूर आपको तसल्ली मिलती है तो बताएँ, अ, या आपके सवालों का जवाब मिला है तो शेयर किया करें, ठीक है? चलें ठीक है फिर जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।